And Ms. Rinki Roy. I would like to welcome you and thank you so much for taking time for us and making this evening a memorable one. I would like to call Ms. Rinki Roy and our GM Mr. Ramakrishnan to give Ms. Rinki Roy a token of gratitude. Ma'am, I would request you if you could share a few words with our audience. Delighted. I'm very privileged to be here. Sorry? Okay. Can you hear me? And to see so many of you here to watch my father's film, Dobiga Zameen. My brother was not even born when this film was made, but I remember going around with my father to look for locations for the film. And what is today the Juhu Vela Palace scheme was those days rice fields, and many of the shots in Dobiga were taken there at Juhu Vela Palace scheme, and which sort of matched his location. Most of the village scenes were taken there, and most of the film, of course, is shot in Calcutta. It's also a film which belongs to Calcutta, and I mean, we can talk, go on talking about the film, but I would like to say this is a fantastic initiative by NMIC to show classics, bring them back to the big screen. And these films are not made for small screens or for handsets, so it's really a pleasure to watch it on the big screen. I hope the print is good, I'm sure it is. So enjoy it, and I think very soon you will see these films restored and come back in a better format, because they're being restored in a very, four of my father's films are being restored. I hope you can see all four of them someday, and we can see them together. Yeah? Okay. Thank you. Joy. Good evening, everyone, and thank you for being here, and thank you, NMIC. Thank you, sir. And the choice of film, I feel, is very appropriate because you all haven't mentioned it, but it's the 70th year of Dobiga Zameen. Yeah, it's been 70 years. And the film is, I don't want to say too much about the film because everybody's speaking about it and you'll see it. But the thing is, the wonderful thing is that the subject is still relevant today. And I feel the film hasn't really dated, which again is wonderful because a 70-year-old film to be relevant today is remarkable. I'll just share one personal anecdote because as my sister said, I wasn't even born when Dobiga Zameen was made. I have to also explain that my father wanted to always keep his personal life separate from his film world. So we never saw his films. And the first time I saw Dobiga Zameen was after he passed away. And it was, in fact, just a short while. Some film society had arranged for a screening, and I remember going with my mother. And the first time I saw the film, and it affected me very deeply. And till today, actually, I can't really watch the film through. It just is it's such a sad film, and it's a reminder of somehow death, which is a personal thing. But I know that it's a wonderful film, and I really hope that you'll enjoy the film because it's, on film terms, it's supposed to be neorealistic cinema. It was inspired apparently by the movement neorealism in Italy. So I think it was the first time probably that this kind of gritty reality was shown. And I feel very privileged to be Bimal Roy's son, and thank you for being here once again. Thank you so much, sir. I Sir, just want to add something. Yes, it is 70 years old. The film has not dated at all. And in fact, today when we talk about the farmer struggle, this is the film which has been always quoted. It's so relevant today. In fact, more relevant than when it was made. And when this was made, there were questions, why would such a dark film come soon after India's independence?
This was one of the questions raised by the film critic of London, and I think we can't say anything authentically, but I somehow find that this film resembles, and in a very strange way, my father's own life, who was thrown out of his estate from Bangladesh and came as a refugee long before refugees were even heard of. So I see Shambhu Mahato's struggle and my father's struggle in a very strange way match each other. Thank you so much, and do watch the film. Bye. Thank you so much, ma'am. Can I have a big round of applause, please? Also, we have Miss Appa. Yes. I suddenly remembered a story about the Vikas. I mean, of course, I've seen it many times, and every time it moves me. And I think it's an incredible document, human document. I lived in Hyderabad for many years, and I was attending once the Asian Social Forum. Those of you who know, there's something called the World Social Forum. The first time they had a very big meeting, and everybody, Aruna Roy and Arundhati Roy, everybody came, all the big activists. And there was a film festival. The films had been chosen in Delhi, and I don't know who chose them, but I went there very eagerly, thinking, oh, wonderful, I'll be seeing some, great alternative cinema. And of course, Ritik Ghatak, Mrinal Sen, everybody was represented. I didn't see my father's name. And I felt very sad. I thought to myself, he made these films, which were definitely not, they were popular, but they were not made like populist cinema. So why was he missing? So on the last day, I was leaving, and my friend said to me, come here, why are you going away? I said, because, it's evening, I need to go home. And she said, your father's film is being shown here. I said, no, you're mistaken, it's not being shown. She showed me a stall. So she was sitting, she worked for Orient Longman, the book publishers. Opposite it was a stall of, believe it or not, a rickshaw pullers union. And they were setting up chairs, and they were setting up a screen to do an outdoor screening of Dobi Zameen. And I thought to myself, this is the only testament that we need. It was the rickshaw pullers who wanted to see this film. And not a kind of elite cinema hall, but out there in the open. And I really thought to myself, that's a wonderful. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for coming. Just pause it. The same place. Ready? Thank you so much. किधर है? हाँ तो ठीक है, आ जाओ, हम आ गए 5 मिनट में। सीधे लाके सामने आओ। मैम, हम जानना चाहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बारे में। आपके पिता ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था, जो काफ़ी नामी मूवी रही है, इंटरनेशनल तक ये मूवी रही है, और इतने सालों बाद 1953 के बाद 2023 में ये एक बार री लॉन्च आप कर रहे हो, स्क्रीन पे बड़े पर्दे पे ला रहे हो, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप जो इस मूवी के फैंस रहे हैं, जो आपके पिता या डायरेक्टर सर जानते हैं, उनके बारे में आपके कुछ कहना चाहेंगे? पिताजी के बारे में या मैं तो बहुत मानती हूँ कि पिताजी की फिल्में बड़ी स्क्रीन में दिखाया जाए। वो तो होता नहीं है, क्योंकि आजकल लोग हैंडसेट में देखते हैं और छोटा स्क्रीन में देखते हैं, लेकिन ये जो फिल्में हैं, ये जब बनी थी तब तो टेलीविज़न भी नहीं था, तब ना
बड़ा स्क्रीन में रिलीज़ होता था। और ये फिल्म तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये आज 70 साल का अभी 70 साल हुआ, लेकिन आज भी नहीं लगता पुराना है। इसकी एक एक बात बहुत ही अहम है और ये दिल को छूता है, क्योंकि इसमें जो कहानी है, द फिल्म स्टोरी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आज के जो फार्मर्स हैं, आजकल फार्मर्स का सुइसाइड हो रहा है, ये फिल्म अभी भी बहुत चर्चित है। सब जगह में ये फिल्म के बारे में लोग कहते हैं, इसको लेके लिखना पढ़ना होता है। तो मुझे लगता है अच्छा है, आज के जो नौजवान हैं उनको देखना चाहिए फिल्म कैसे बनती है। और ये फिल्म का स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माय फादर्स प्रोडक्शन हाउस, फर्स्ट प्रोडक्शन हाउस था। और देन इट वेंट, ही मेड ऑल द फिल्म्स। पता नहीं आपको दूसरी फिल्म के बारे में पता है कि नहीं, उन्होंने देवदास बनाई है, सुजाता, बंदिनी, मधुमती जैसी फिल्में बनाई हैं। तो उनका तो बहुत हिस्टोरिक, ही इज़ अ वेरी हिस्टोरिक मैन। मैम, हम जानना चाहेंगे 70 बाद एक बार फिर ये मूवी को आपने बड़े स्क्रीन पे प्ले किया, जो काफ़ी मैंने देखा कि काफ़ी लोग देखने आए, यंग लोग देखने आए। जी। तो इसके पीछे का कारण क्या था जो आप इतने सालों बाद ये मूवी सामने लाई? ये पुराने फिल्म कहाँ दिखाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं दिखाते हैं। फॉरेन फेस्टिवल में जाती है, हमको कहीं भी इसको बुलाया जाता है तो मैं जाके फेस्टिवल में दिखाती हूँ। मैं खुद एक फिल्म सोसाइटी चलाती हूँ और वहाँ दिखाती हूँ इसको, क्योंकि लोग एक तो ब्लैक एंड वाइट है, मेरे पिताजी के सब फिल्म ब्लैक एंड वाइट, ऑल द फिल्म आर ब्लैक एंड वाइट, लेकिन ब्लैक एंड वाइट से उसमें कोई फ़र्क नहीं होता है, एज़ ब्यूटीफुल एज एवर। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर शायद हम इसको और बहुत बड़ा पैमाने में दिखाएंगे, बड़ा थिएटर्स में दिखाएंगे। हमारा तो इच्छा है, ये दिखाना चाहते मैम, हैं। जानना चाहेंगे विमल रॉय सर को आज भी इस लाइफ में आप कितना मिस करते हैं? हालांकि जब ये मूवी आई थी तो आपकी मूवी तो कभी याद ताज़ा हो जाती है कि इतने सालों बाद बहुत कुछ ये देखते देखते हमने कितने सारे हमको बात याद आई है। ये फिल्म में मेरे पिताजी का जो असिस्टेंट थे उन्होंने भी एक्टिंग किया है। इस फिल्म में आपको पहले दफ़े इसका जो कॉमेडियन है महमूद का फर्स्ट फिल्म है ये। और जॉनी वॉकर की बीवी जो थी नाज, ये भी इसमें बहुत सारी बातें हैं इसमें जो हिस्टोरिक है। और कभी भी किसी ने निरूपा राय को ऐसे साधारण रोल में कोई फिल्म में नहीं, वो तो गॉडेस आती थी। निरूपा राय वॉज ऑलवेज एक्टेड कंसिडर्ड फिल्म गॉडेस। इस फिल्म में उनको ऐसे एकदम मामूली रोल में दिखाया है, वो भी बहुत बड़ी बात है। बलराज साहनी की बात करेंगे, नीमर रॉय की बात करेंगे, तो हालांकि अब नहीं है इस दुनिया में, बट फिर भी उनकी ये फिल्म देखने के बाद यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो ये फैमिली मेम्बर का कितना सपोर्ट रहता है जब आप अपने ऐसी पुरानी फिल्में प्रमोट करती हैं? नहीं, लोग देखने आते हैं। पिताजी का फिल्म बहुत चाहते हैं लोग, अभी भी वो ऑडियंस का दिल में बहुत जिंदा है। कोई भी अब जो उन्होंने लिया है ना, जो इश्यूज़ ली है, जैसे इसमें है कि फार्मर का जो स्ट्रगल है जिससे छीन लिया जाता है उसका ज़मीन, या सुजाता में जो कास्ट का इशू है, बंदिनी में भी ऐसे ही इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनकी फिल्म में हर फिल्म उनकी सोशली बहुत रेलिवेंट है और रहेगी। मैम, हम जानना चाहेंगे विमल रॉय सर जो इतने बड़े डायरेक्टर रहे हैं, उनकी फिल्में हम देखते हैं तो बहुत एक छोटी से छोटी कमियों को भी उन्होंने तराशा है। एक छोटे गांव के स्टोरी हो या वहाँ के कल्चर को दिखाया है। तो जैसे आपने बताया कि मैं भी एक फिल्म सोसाइटी चलाती हूँ, तो आप कितना फॉलो करती हैं अपने पिता को अपनी? मैंने उन पर एक किताब लिखी है, आप पढ़िए ज़रूर। पेंगुइन का नाम तो सबने सुना होगा, पेंगुइन पब्लिशिंग हाउस। आई हैव रिटन अ बुक ऑन माई फादर, प्लीज़ रीड दैट। आई एम वेरी हैप्पी इफ यू रीड दैट बुक, देन यू विल गेट टू नो 20 people have written in that. Everybody from Nasiruddin Shah to Satyajit Ray, everybody is written on my father. तो इतना बड़ा काम मैंने किया है, वो आप जरूर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, बात करके अच्छा लगा मैम। ओके सर, इतने सालों बाद आपके पिताजी का एक बार फिर से बड़े पर्दे पे मूवी आ रही है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस मूवी के फैंस या अपने फैमिली मेम्बर्स? मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं बहुत खुश हूँ कि NMIC फिल्म दिखा रही है। फिल्म का 70 साल हुआ, तो दिस इज़ लाइक 70th ईयर। और सबसे महत्व की बात है कि अभी तक फिल्म रेलेवेंट है और सब इतने लोग आए हैं देखने के लिए, बहुत खुश हूँ मैं। तो ये मेरे पिताजी का
फर्स्ट अपना प्रोडक्शन था और इसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड उसी साल शुरू हुआ, तो 5 सिर्फ अवार्ड्स थे, उनमें से 2 उनको मिला था। यस, तो और दैट्स अ इस ग्रेट फिल्म को थिंग। इंटरनेशनल में भी अप्रोच किया गया था नहीं, इस फिल्म का इट वाज आल्सो शोन इन कान in France, and this was shown before Pather Pachali of Satyajit Ray, but very few people know that. And this is a very significant film, and I am very privileged to be Bimal Roy's son. अगर हम बात करते हैं विमल रॉय सर के फिल्म की जो 1953 में रिलीज़ किया गया था, इन 2023 में एक बार फिर स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, तो मैंने देखा काफ़ी इफेक्ट हो रहे हैं इस जनरेशन के लोगों के लिए। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ब्लैक एंड वाइट की जो फिल्में रहती हैं उसमें एक स्टोरी रहती है जो शायद ही इस ज़माने की फिल्मों में वो नहीं देखने को मिलता, हमें एक कल्चर नहीं देखने को मिलता है। देखिए, ज़माना बिल्कुल बदल गया। उस समय लोग देखना चाहते थे ऐसे सीरियस फिल्म, उनके पेशेंस थी, और अभी बच्चे लोग जो है कलर के सिवाय कुछ नहीं देखेंगे, और सब फास्ट मूविंग होना चाहिए क्योंकि लाइफ इज़ लाइक दैट। सो दोनों को कंपेयर करना मुश्किल है। जो वहाँ पे ठीक थी, आज के ज़माने में अब क्लासिक्स बन गए हैं। तो ये स्टडी, मतलब ये देखना है कि लोग जो देखते हैं उनको समझ में आता है कि हमारा हिस्ट्री क्या था, नहीं, इस फिल्म का जो है। और इस म्यूज़ियम में जो मैंने अभी देखा, कितने जगह पे मेरे पिताजी का सब जिक्र है, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। सर, रियल लाइफ में आप कितना विमल रॉय सर को फॉलो करते हैं? रियल लाइफ में मेरी माँ और मेरे पिताजी मेरे सब कुछ है। मैं जो भी हूँ उनके लिए है। जो मैं कभी भी कोई लाइफ में कोई सिचुएशन हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग क्या करते थे, तो मैं उस हिसाब से चलना कोशिश करता हूँ आज सर, तक। अगर हम सर की बाकी फिल्मों की बात करें तो सुजाता, बंदनी जैसी फिल्में जो कि काफ़ी सुपर डुपर हिट रही हैं, तो क्या वो भी फिल्में हमें बड़े स्क्रीन पे देखने को मिलेंगे? बहुत कम, लेकिन मुझे लगता है कि इन लोग जो कर रहे हैं ज़रूर ये फिल्म भी दिखाई देंगे। मैं इनको बताऊंगा कि दिखाना चाहिए वो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। यू नो तो पब्लिक, सॉरी, इट्स ओके। ले लिया भाई। बहुत पुरानी फिल्म है, 1953 की फिल्म जो 2023 में दिखाया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसी लगी फिल्म आपको? फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया। मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ 2 बीघा ज़मीन, ये मूवी। जो डायरेक्शन है, जो काम हुआ है, डायरेक्टर फोटोग्राफी का काम है, स्टोरी है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। मतलब इतना सटल मूवी है। मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि 70 साल पुरानी अगर मूवी है तो मुझे इतना सब रिफाइंडनेस देखने को मिलेगा। बट अपार्ट फ्रॉम मूवी कलर में नहीं है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज़ फैंटास्टिक। मूवी की स्टोरी की बात किया जाए तो उसमें एक विलेज ऑफ कल्चर के दिखाया गया है, तो आपको कितना दिक्कत महसूस हुआ कि हम भी अपने विलेज में हैं या फिर ऐसे कुछ होते हैं? नहीं, आई फील वेरी कनेक्टेड टू द मूवी बिकॉज ऑल्दो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, बट हमारा भी जो गांव है टिपिकल विलेज जैसा ही है। और जब भी हम वहाँ जाते हैं तो हम वही फील करते हैं जो अभी जो दिखाया जा रहा है। मतलब अभी ऑलमोस्ट 70 ईयर्स हो गए हैं, बट फिर भी गांव साइड में जो सिचुएशन है, इतना वी कैन कनेक्ट इट ईजिली। आप अपने फ्रेंड या फैमिली को प्रिफेयर करना चाहेंगे? डेफिनेटली मैं इनफैक्ट आई जस्ट मेड कपल ऑफ कॉल्स। मैंने अभी दोस्तों को बोला कि ये जहाँ पे भी हो, ये मूवी का अगर कहीं पे DVD मिलता है या फिर अगर कुछ यूट्यूब पे अगर मिल जाता है, कहीं पे स्ट्रीमिंग हो रहा है, तो डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग मूवी। थैंक यू सो मच। मच। थैंक यू।